Today we discuss more example based on definite integration as limit of a sum. We discussed already two examples, then example number third. Next type आपके पास evaluate as the limit of a sum or first principle of integration. Integrate lower limit 1 upper limit 3 x square plus x dx, and second is integration one to 2 x square plus x plus 2 dx. एग्जाम्पल नंबर थर्ड में दो पार्ट लिए हमने, थोड़ा सा डिफर है। जो कल टाइप हमने करवाई थी उसमें प्योर क्वाड्रेटिक टर्म थी, या एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की टर्म है, उसी के भी आप हम सॉल्यूशन करेंगे। देन व्हाट इज गिवन 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx. Here a is equal to 1, b is equal to 3, then h is equal to upper limit minus lower limit divided by n, and we write here nh is equal to 2. nh is equal to 2. Then we write limit integration 1 to 3 x square plus x dx is equal to limit h tends to 0 h f of lower limit plus h f of lower limit plus 2h up to f of lower limit plus n minus 1h. f of 1 plus h, f of 1 plus 2h, f of 1 plus n minus 1h. Then h की वैल्यू b minus a over n. Then here fx is given x square plus x. Then first put x is equal to 1 to both sides. f of 1 का square plus 1, and this is equal to 2. Then you put 1 plus h, तो हो गया 1 plus h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h, और इसको लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस 1 प्लस h, और इसको हमने लिख दिया 2 प्लस 3h प्लस h स्क्वायर. देन यू पुट x की जगह हमने पुट किया 1 प्लस 2h, तो ये हो गया 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h, और ये रिजल्ट हो गया 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1 प्लस 2h, और ये हो गया 2 प्लस 6h प्लस 4h स्क्वायर. देन वी पुट f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 1 plus n minus 1h, and this j square plus b square plus 2 of ab plus 1 plus n minus 1h, and this is equal to 2 plus 3 n minus 1h plus n minus 1h होल स्क्वायर. सभी की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, f of 1 plus h, f of 1 plus 2h up to f of 1 plus n minus 1h. Therefore, limit h tends to 0 h
f of 1 is 2, f of 1 plus h is 2 plus 3h plus h square plus 2 plus 6h 4h square up to 2 plus 3 n minus 1h plus n minus 1h whole square of this. f of 1 plus h, f of 1 plus 2h up to f of 1 plus n minus 1h. लाइक टर्म को कलेक्ट करें आप, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे आप. लिमिट h टेंड्स टू 0h, लाइक टर्म इज 2 plus 2 plus 2 up to 2, then 3h 6h up to 3 n minus 1h plus h square 4h square up to n minus 1h whole square. लाइक टर्म की कांस्टेंट h और h स्क्वायर की टर्म. तो रिजल्ट आया मेरे पास यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0h, this is 2 of n, number of times n times, plus 3h take common, 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 plus h square take common, then 1 plus 2 square, 1 square plus 2 square up to n minus 1 square. ये रिजल्ट्स मेरे पास रिमेनिंग होगा. बट 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1 is equal to n into n minus 1 upon 2. Also 1 square, 2 square, 3 square, n minus 1 square is n into n minus 1, 2n minus 1 upon 6. सीक्वेंस आपके पास, वैल्यू रिप्लेस करें आप, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहाँ से. दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0h 2n plus 3h n into n minus 1 upon 2 plus h square n into n minus 1 2n minus 1 upon 6. और यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0h, दिस इज 2n प्लस 3/2h, मल्टीप्लाई किया इसको n स्क्वायर माइनस n प्लस h स्क्वायर बाई 6, 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n. मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 को, तो 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n. तो मेरे पास रिजल्ट आया, h से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. लिमिट h टेंड्स टू 0 2nh 3/2 h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n h क्यूब बाई 6 2n क्यूब 3n square plus n. Then we write here limit h tends to 0, 2 of nh plus 3/2 n square h square minus 3/2 n h square plus 2 n cube h cube by 6 minus 3 n square h cube by 6 plus n h cube by 6. वैल्यूज पुट करते जाएंगे. 2n क्यूब h क्यूब बाई 6 माइनस 3 n स्क्वायर h क्यूब बाई 6 प्लस n h क्यूब बाई 6. अब पूरे सीक्वेंस के अंदर n h फॉलो कर दूंगा. पूरे सीक्वेंस के अंदर n h फॉलो कर देंगे. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 n h प्लस इसको लिख दिया 3/2
इसको लिख दिया NH का होल स्क्वायर माइनस 3/2 NH इंटू H 1/3 NH होल क्यूब 1/2 NH होल स्क्वायर इंटू H प्लस NH/6 इंटू H स्क्वायर. What value of NH? But NH is equal to 2. NH की वैल्यू 2 आपके पास पुट कर दें. लिमिट H टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 3/2 2 का स्क्वायर 3/2 इंटू 2H 1/3 2 का क्यूब 1/2 2 का स्क्वायर इंटू H और 2/6 इंटू H स्क्वायर. NH की जगह रिप्लेस कर दिया. क्या रिजल्ट आया एग्जैक्ट? लिमिट H टेंड्स टू 0 ये हो गया 4 प्लस 3/2 इंटू 4 2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस का 3H प्लस 8/3 माइनस 2H प्लस 1/3H स्क्वायर 1/3H स्क्वायर. एग्जैक्ट रिजल्ट आया मेरे पास. कैंसिल हो गया ये. लिमिट H टेंड्स टू 0 4 प्लस 6 प्लस 8/3 माइनस 5H प्लस 1/3H स्क्वायर. लिमिट आपके पास अप्लाई है H टेंड्स टू 0. जहाँ भी H लिखा उसकी जगह 0 लिखता है. तो आपके पास रिजल्ट आ गया 10 प्लस 8/3 एंड दिस इज इक्वल टू 38/3. ये आपके पास आंसर होगा. 10 प्लस 8/3 H की जगह 0 पुट करेंगे. H की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. ये आपके पास x स्क्वायर x की टर्म थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन फॉलो किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास. इसका सेकंड पार्ट है. गिवन है आपको इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 एंड द गिवन फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 dx. ये गिवन टर्म है आपके पास. मेरे पास लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है. h मेरे पास b माइनस a ओवर n है तो NH की वैल्यू 1 है मेरे पास. थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं. देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 2 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of lower limit plus h f of lower limit plus 2h up to f of lower limit plus n minus 1h. थ्योरम पे अप्लाई कर दिया लोअर लिमिट a की वैल्यू. देन व्हाट इज fx? x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. देन फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू 1 तो हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एंड दिस इज एग्जैक्ट 4. देन f ऑफ 1 प्लस h ये हो गया आपके पास 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 प्लस h और प्लस 2 और यहाँ से हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस 1 प्लस h प्लस 2 और ये मेरे पास हो गया 4 प्लस 3h प्लस h स्क्वायर. 2 प्लस 1 प्लस 1 2h और प्लस h 3h और h स्क्वायर. f ऑफ 1 प्लस 2h ये हो गया 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस 2 और ये हो गया 1 प्लस 4h स्क्वायर 4h 1 plus 2h plus 2 and this is equal to 4 plus 6h plus 4h square.
4 plus 6h plus 4h square up to so on f of 1 plus n minus 1h हो गया 1 plus n minus 1h whole square of this plus 1 plus n minus 1h और plus 2 a square b square 2 of ab plus 1 plus n minus 1h plus 2 एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास आ गया. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और 1 3 n माइनस 1h प्लस n माइनस 1h सारे का हल स्क्वायर. f of 1 plus h, f of 1 plus 2h up to f of 1 plus n minus 1h. वैल्यूज पुट कर दें आप तो आपके पास रिजल्ट आ गया लिमिट h tends to 0 h, f of 1 is 4, f of 1 plus h is 4 plus 3h plus h square, 4 plus 6h plus 4h square up to 4 plus 3 n minus 1h प्लस स्क्वायर ऑफ दिस. लाइक टर्म को कलेक्ट करते जाए आप. सीक्वेंस आपके पास फॉलो होता जाएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 h. फर्स्ट वी कलेक्ट द कांस्टेंट टर्म 4 plus 4 plus 4 अप टू 4 प्लस 3h प्लस 6h अप टू 3 n minus 1h plus h square 4h square up to n minus 1h का स्क्वायर. लाइक टर्म कलर की कांस्टेंट h और h स्क्वायर. देन लिमिट h tends to 0 h. This is 4n plus 3h take common. सीक्वेंस आ गया आपके पास up to n minus 1. h square take common 1 square 2 square up to n minus 1 square. सीक्वेंस की वैल्यू पुट कर दी हमने. लिमिट h tends to 0 h. दिस इज 4n एज इट इज प्लस 3h और सीक्वेंस की वैल्यू है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 और दिस h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6. जब सीक्वेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा. देन लिमिट h टेंड्स टू 0 h. दिस इज 4n 3/2 h n स्क्वायर माइनस n h स्क्वायर बाई 6 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई कर दिया n के पेयर्स को n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 h से अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज 4nh. दिस इज 3/2 h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n h क्यूब बाई 6 2n क्यूब 3n square plus n. And we write here limit h tends to 0 4nh 3/2 n square h square 3/2 n h square 2/6 को लिख दिया 1/3 n क्यूब h क्यूब 3/6 1/2 n square h क्यूब 1/6 n h क्यूब. अब सब जगह मैं एन एच की टर्म फॉलो करता जाऊंगा और एन एच की वैल्यू पुट कर देंगे फिर तो आपके पास रिजल्ट हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh
ये हो गया 3/2 NH का होल स्क्वायर 3/2 NH इंटू एच 1/3 NH का क्यूब NH का स्क्वायर इंटू एच 1/6 NH इंटू एच स्क्वायर. What is the value of NH? NH is equal to 1. But value of NH is equal to 1. NH जहाँ भी लिखा है उसकी जगह 1 पुट करते जाएं आप. तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4 प्लस का 3/2 माइनस का 3/2H प्लस का 1/3 माइनस का 1/2H प्लस का 1/6 H स्क्वायर. और यहाँ से आ गया लिमिट H टेंड्स टू 0 4 प्लस 3/2 प्लस 1/3 माइनस 3/2H और माइनस 1/2H कलर करेंगे तो आपके पास आएगा 2H और प्लस का 1/6 H स्क्वायर. लिमिट पुट कर दें तो आपके पास आ गया 4 प्लस 3/2 और प्लस 1/3. 6 एलसीएम हो गया 24 प्लस 9 प्लस 2 और ये हो गया आपके पास 24 प्लस 11/6 और ये हो गया 35/6. ये आपके पास सॉल्यूशन होगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन दे रखा होगा x² प्लस x प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 यूजिंग लिमिट एज ए सम. उस कंडीशन से ये आपके पास थर्ड टाइप थी जो हमने आज डिस्कस की है. नेक्स्ट और लास्ट टाइप नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. इवेलुएट as limit of a sum. First is integration 0 to 2 to 3 2 to 5 e की पावर 3x dx एक्सपोनेंशियल की टर्म है. 2 to 5 e की पावर 3x dx और सेकंड आपके पास इंटीग्रेशन 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e की पावर x. दिस इज गिवन. एक्सपोनेंशियल के साथ टर्म दी गई है. लास्ट टाइप आपके पास देखिए बेसिक रूलिंग सेम रहेगी. इसके सॉल्यूशन की बात करें हम. फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 to 5 e की पावर 3x dx. a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 5 h is equal to b minus a over n and nh is equal to 3. 5 minus 2 upper limit minus lower limit divided by n. Then we write the result integration 2 to 5 e की power 3x dx is equal to limit h tends to 0 h f of a plus h f of a plus 2h up to f of a plus n minus 1h. f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus n minus 1h. Then what is given f of x? This is equal to e की पावर 3x. Then first we put f of 2. x की जगह 2 पुट करें तो 3 into 2 and this is equal to e की पावर 6. f of 2 plus h. e की पावर 3 into 2 plus h और हो गया e की पावर 6 plus 3h
और उसको लिख दिया e की पावर 6 इंटू e की पावर 3h। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। f ऑफ 2 प्लस 2h, e की पावर 3 2 प्लस 2h हो गया e की पावर 6 प्लस 6h, उसको लिख दिया e की पावर 6 इंटू e की पावर 6h। अब टू f ऑफ 2 प्लस n माइनस 1h हो गया e की पावर 3 2 प्लस n माइनस 1h और हो गया e की पावर 6 प्लस 3 n माइनस 1h और हो गया e की पावर 6 इंटू e की पावर 3 n माइनस 1h। पूरे सीक्वेंस की जो वैल्यूज थी आपके पास वो हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट बनता गया आपके पास, सभी की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0h, f ऑफ 2 e की पावर 6, f ऑफ 2 प्लस h e की पावर 6 इंटू e की पावर 3h, e की पावर 6 इंटू e की पावर 6h अप टू e की पावर 6 इंटू e की पावर 3 n माइनस 1h। ये सीक्वेंस मेरे पास मिला जब मैंने वैल्यूज रिप्लेस की, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। पूरे सीक्वेंस से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, आप कॉमन ले लें। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा कॉमन जरूर आएगा। e की पावर 6 कॉमन, 1 प्लस e की पावर 3h e की पावर 6h अब 2 e की पावर 3 n माइनस 1h। and this complete be an geometrical progression with first term is equal to 1 and common ratio e की पावर 3h। sum to n term of GP, sum to n term of GP वो आप फॉलो करेंगे यहाँ पे सम टू एन टर्म ऑफ जीपी के अंदर। तो आपके पास सीक्वेंस आएगा सम टू एन टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन n माइनस 1 इंटू h। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया, दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0h, सम होगा मेरे पास a e की पावर 6 sum to n term because sum to n term of GPA r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, राइट। sum to n term of a GP, then a की वैल्यू 1 है, r कॉमन रेशियो e की पावर 3h, e की पावर 3h उसकी पावर n उसकी पावर n माइनस 1 अपॉन a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 e की पावर 3h माइनस 1। ये सीक्वेंस बनेगा मेरे पास। देयरफॉर रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर 6 e की पावर 3nh माइनस 1 अपॉन e की पावर 3h माइनस 1। e की पावर 6 को लिमिट से बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर 3h और माइनस 1 इसको एक साथ ले लिया इंटू e की पावर 6 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 3nh माइनस 1। ये रिजल्ट एक साथ ले लिया मैंने, ये कंप्लीट रिजल्ट एक साथ ले लिया मैंने। हमेशा h को और जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल की टर्म होगी उसको हमेशा अपने साथ रखना है। बट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन e की पावर x माइनस 1 या लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी है मेरे पास। 11th क्लास में आपने एक्सपोनेंशियल के केस में पढ़ा होगा, लिमिट के केस में। देयरफॉर मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाई 3। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन e की पावर 3h माइनस 1 और ये 3 से डिवाइड कर दिया e की पावर 6 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 3nh माइनस 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो गई। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/3 e की पावर 6 इंटू nh इज इक्वल टू 3, nh इज इक्वल टू 3। तो आप पुट करें तो e की पावर 9 माइनस 1 और इसको लिख दिया 1/3 e की पावर 15 माइनस e की पावर 6। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। एक्सपोनेंशियल के केस के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 3h e की पावर 3h माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा आपके पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एक्सपोनेंशियल के केस में हमेशा आपके पास जीपी बनेगी और जीपी की फॉर्मेशन के साथ ही हम उसको सोल्व करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसी का सेकंड पार्ट है। गिवन है इंटीग्रेट 1 to 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस e की पावर x विद dx। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ एल्जेब्रिक फॉर्म क्वाड्रेटिक दे रखी है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करें। बट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n, देन nh इज इक्वल टू 1। nh इज इक्वल टू 1। nh की वैल्यू आपके पास आ गई b माइनस a ओवर n। 1 2 3 1 2 3 तो nh की वैल्यू 2 हो गई आपके पास। थ्योरम लिखे आप 1 2 3 x स्क्वायर प्लस 3x e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of lower limit plus h f of lower limit plus 2h up to f of 1 plus n minus 1h। lower limit 1 plus h 1 plus 2h up to 1 plus n minus 1h। then fx is given x square plus 3x plus e की पावर x। First we find f of 1 plus 3 plus e की पावर 1, this is equal to 4 plus e की पावर 1, 4 plus e की पावर 1। then f of 1 plus h, तो ये हो गया 1 plus h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 plus h प्लस e की पावर 1 plus h। इसको सोल्व किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 3 e की पावर 1 इंटू e की पावर h। तो मेरे पास रिजल्ट आया 4 प्लस का 5h प्लस का h स्क्वायर प्लस e की पावर 1 इंटू e की पावर h। फिर मैंने पुट किया 1 प्लस 2h, तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर 3 1 प्लस 2h प्लस e 1 प्लस 2h। जहाँ भी x लिखा उसको रिप्लेस करते जाएं। तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 4h स्क्वायर 4h प्लस 3 प्लस 6h प्लस e की पावर 1 e की पावर 2h। तो मेरे पास हो गया 4 प्लस 10h प्लस 4h स्क्वायर e की पावर 1 e की पावर 2h। then f of 1 plus n minus 1h, तो हो गया मेरे पास 1 plus n minus 1h का होल स्क्वायर 3
1 प्लस n माइनस 1h प्लस e की पावर 1 प्लस n माइनस 1h, राइट। x की वैल्यू मेरे पास हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3n माइनस 1h प्लस e की पावर 1 e की पावर n माइनस 1h। एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया 4 प्लस 5n माइनस 1h प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर प्लस e की पावर 1 और e की पावर n माइनस 1h। ये मेरे पास सीक्वेंस पड़ा f of 1 प्लस h, f of 1 प्लस 2h, f of 1 प्लस n माइनस 1h। पूरे सीक्वेंस की वैल्यू पुट कर दें। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4 f of 1 4 प्लस e की पावर 1, ये फर्स्ट स्टेप है। देन 4 प्लस 5h प्लस h स्क्वायर प्लस e की पावर 1 इंटू e की पावर h प्लस 4 प्लस 10h प्लस 4h स्क्वायर प्लस e की पावर 1 इंटू e की पावर 2h अप टू 4 प्लस 5n माइनस 1h प्लस n माइनस 1h सारे का होल स्क्वायर प्लस e की पावर 1 इंटू e की पावर n माइनस 1h। ये पूरा सीक्वेंस वैल्यूज रिप्लेस की तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। देन लाइक टर्म कलेक्ट करते जाए आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लाइक टर्म में मेरे पास 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू 4 प्लस h की टर्म 5h प्लस 10h अप टू 5n माइनस 1h प्लस h स्क्वायर 4h स्क्वायर n माइनस 1h इसका होल स्क्वायर प्लस e की पावर 1 इंटू e की पावर h e की पावर 2h अप टू e इंटू e की पावर n माइनस 1h। एक्सपोनेंशियल की टर्म एक साथ पूरा रिजल्ट आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n 5h टेक कॉमन 1 प्लस 2 अप टू 3 n माइनस 1 h स्क्वायर कॉमन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस e कॉमन 1 प्लस e की पावर h e की पावर 2h e की पावर n माइनस 1h। सभी सीक्वेंस को एक साथ कलेक्ट करके और रिजल्ट को फॉलो कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n 5h n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 सीक्वेंस की वैल्यू है प्लस h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6 ये सीक्वेंस की वैल्यू है प्लस e और ये मेरे पास 1 प्लस e की पावर h e की पावर 2h e की पावर n माइनस 1h। ये मेरे पास GP है जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e की पावर h है। यहाँ मैं सम लगा दूँगा। देखिए क्या बना। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4n ये हो गया 5 अपॉन 2h ये हो गया n स्क्वायर माइनस n ये हो गया h स्क्वायर बाई 6 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n प्लस e a r की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1। ये पूरा रिजल्ट बना मेरे पास।
इसी के अकॉर्डिंग h से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखिए क्या बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4nh, ये हो गया 5/2 h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n h3/6 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n प्लस इसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 h e ऑफ e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, उसके साथ अलग से लिमिट दे दी और पूरे फंक्शन को ऐसे लिख दिया। रिजल्ट आया लिमिट h टेंड्स टू 0 4nh, इसको लिख दिया 5/2 nh का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया 5/2 nh इंटू h, इसको लिख दिया 1/3 nh का होल क्यूब 1/2 nh का होल स्क्वायर इंटू h प्लस 1/6 nh इंटू h स्क्वायर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इंटू e की पावर nh माइनस 1, ऐसे लिख लिया। बट nh इज इक्वल टू 2, जहाँ भी nh है उसकी जगह 2 पुट कर दें आप, तो आपके पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 nh 2 पुट करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, प्लस nh को 2 पुट करेंगे तो 4 हो गया, 4 को 2 से कैंसिल करें तो 10 आ गया आपके पास, nh 2 पुट करेंगे तो माइनस का 5h प्लस nh को 2 पुट करेंगे तो 8/3, nh को 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2h, nh को 2 पुट करेंगे तो 1/3h स्क्वायर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इंटू ई, nh की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ गया e की पावर 2 माइनस 1। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 8/3 माइनस 7h 1/3h स्क्वायर प्लस 1 e ऑफ e की पावर 2 माइनस 1, बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e की पावर h माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास रिजल्ट आया यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो गया और यहाँ से आ गया 18 प्लस 8/3 प्लस e ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, e ऑफ e स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसको सोल्व किया (54 प्लस 8/3 प्लस e की पावर 3 माइनस e), और ये हो गया आपके पास 62/3 प्लस e क्यूब माइनस e। ये मेरे पास सॉल्यूशन आएगा। एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रिक फॉर्म भी दे रखी है तो ये साथ साथ भी दे सकता है। तो लिमिट एज ए सम डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला टॉपिक था, ये कंप्लीट है। यहाँ तक आप सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सारी टाइप जितनी भी थी इसके अंदर वो सारी मैंने सोल्व कर दी है। यहाँ तक आप कंप्लीट करें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस आर्टिकल के ऊपर इससे बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक आप सभी कंप्लीट कर लें। डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका जनरली पूछा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट करें आप।